you CPHI for organizing such a great event. Mr. Yogesh ji, Chakravarti ji and Mr. Wagh ji, who have been great experience into the industry, and for supporting the pharma industry altogether. All the pharma people are coming together on this 3 days to take the Indian pharmaceutical industry to the next level. And when we see the manufacturers are coming, developing the new technology for entire world. So as we know, India is one of the biggest pharmaceutical exporter and manufacturer of generic medicines to entire world, and 1/3, and now increasing exports for entire world has been done by India alone. So from all the developed countries, India is exporting generic medicines, and because of this event, the demand and the supply from India will increase definitely very high. So to bring the foreign investments and to take our Indian economy, when our Prime Minister Narendra Modi ji is saying to take our Indian economy to 5 trillion, 10 trillion, this kind of events will really bring a change into the industry and to take our Indian economy to the next level. So I congratulate the entire team of CPHI and Informa Market for organizing such a great event for pharmaceutical industry. Thank you, Mr. Deshpande. Thank you. Dr. Shah. Well, I'm Dr. Viren Shisha. I'm the Senior Vice President of the Indian Drug Manufacturers Association. We are the largest association of Indian pharmaceutical manufacturers, representing almost 3/4 of the total production of pharmaceuticals in India. At the onset, I congratulate Informa for organizing CPHI India, which was very much necessary in order to move forward. India today is recognized as the pharmacy of the world, and we supply essential medicines to almost 200 countries. This is a almost $45 billion size industry. We almost split equally between the domestic industry and the international the exports that we do. The government of India has set out a very aggressive, very good target of 130 billion by 2030. And as an industry, I'm very sure that the industry has the capabilities to reach $130 billion size by the year 2030. And events like this will help India to augment its position from where it is today. Today we are the 3rd largest manufacturer, and we aspire to be number 1 in the coming years, hopefully by 2030. The pandemic has also posed challenge, at the same time given a lot of importance to the pharmaceutical industry, and we understand the big role that the Indian pharmaceutical industry will have to play in the next 10 years to strengthen its position from number 3 to number 1 by providing quality and innovative products to the world. And I'm sure on behalf of IDMA, I assure you that the industry is ready to take that lead. So thank you once again Informa for hosting this event and helping the industry to network. अर्जुन जी, आपसे जानना चाहेंगे हम क्या कहना चाहिए, आप यहाँ पर पहुँचे हैं इनोग्रेशन कर ले 1300 किलोमीटर दूर मुंबई से यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे इस आज इवेंट की अगर बात करें? ये बहुत ही अच्छा चीज़, मतलब हर साल फार्मा इंडस्ट्री को एम्पावर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ किया जाता है CPHI, और ये फार्मा का एक सबसे बहुत अच्छा इवेंट होता है, जहाँ से अगर आपने देखा होगा तो 550, जैसे मुंजाल जी ने कहा कि 550 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स जो कि फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे कंट्री के फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को पूरे दुनिया के सामने और पूरे ग्लोब के सामने। तो यहाँ से मतलब हम लोग जो कह रहे हैं अभी यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे फॉरेन के ज़्यादा से डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, MOH के पीपल हो, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए CPHI बहुत बड़े पैमाने पे बहुत काम करेगा, और इसके लिए मतलब हम लोग जो देश में काम कर रहे हैं सब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेनेरिक आधार के माध्यम से, वैसा ही एक CPHI का बहुत अच्छा मुहिम है। पूरे देश में एक आवाज़ उठी है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, हर चीज़ें चाहे सस्ता हो, दवाई हो, खाने पीने की चीज़ें हो। तो आत्मनिर्भर की अगर बात करें तो कितना इसमें आपने बातें की, आत्मनिर्भर होना, दवाइयाँ सब यहीं पे बने, कुछ दवाइयाँ जो बाहर से आती हैं, क्योंकि दवाइयों को जो अभी जो कोरोना हुआ है, कुछ दवाइयाँ जो बहुत महंगी थी, 35,000 की, 3,000 रुपये की दवाई 3-3 लाख तक बिकी है। तो आत्मनिर्भर पे क्या कहना चाहेंगे आप? आज इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फार्मा इंडस्ट्री में API का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। आज इंडिया बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंड था API सप्लाई को लेके, तो अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स के वजह से अभी इंडिया में API का पार्क बनने जा रहा है। तो इससे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, नहीं तो इंडिया के मेडिसिन के प्राइस है वो बहुत कम रेटों में लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन मिलने को शुरू हो जाएंगे, और इंडिया में जो API मैन्युफैक्चरिंग का जो संख्या है वो बढ़ते हुए जाएगा। तो इंडिया को
एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पूरे ग्लोब के सामने हम लोग हमारे मेडिसिन अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर दवाई के नाम पे हिंदुस्तान में काफ़ी महंगी बेची जाती है हर चीज़। 10 रुपये की दवाई अगर देखो मार्केट तक पहुँचते हो तो 100 से ऊपर चली जाती है, 100 गुना ज़्यादा पहुँच जाती है। जेनिक आधार जो आपने स्टार्ट किया है, इससे क्रांति आ गई है मेडिकल लाइन में, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज मतलब हम लोग जो मैन्युफैक्चरर्स है अभी मतलब यहाँ पर जो इतने WHO GMP मैन्युफैक्चरर्स है, US FDA अप्रूव मैन्युफैक्चरर्स है, जो कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग की वो बहुत बेसिक होती है। तो अभी हम लोग जो ये मैन्युफैक्चर से बल्क में प्रोडक्ट्स लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस के ऊपर और हम लोग लोगों तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है CPHI का, जहाँ पर बहुत मैन्युफैक्चरर्स अंडर वन रूफ आते हैं। और जेनरिक आधार का एक मोटो तो हमेशा रहा है कि हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने का। तो हम लोग अभी हर एक मैन्युफैक्चरर सपोर्ट करके उनको एक आत्मनिर्भर भारत के साथ में जोड़ने का एक काम कर रहे हैं। जी, आपने एक सपना है जो साकार हुआ। आपकी उम्र 19 साल है, तो 5 साल 6 साल 10-12 साल आपको लगे हुए इसको मुझे यहाँ तक पहुँचना है। जो बच्चों की खेलने की उम्र होती है आपने सोचना शुरू किया, तो क्या कहना चाहिए, आगे सोच क्या है आपकी, फार्मे में आप क्या लाना चाहते हैं, इसके अगला स्टेप क्या है, क्रांति क्या है? आज 130 करोड़ ऑफ द पीपल को हम लोग एफोर्डेबल मेडिसिन का लाभ देना चाहते हैं हमारे इंडियन मैन्युफैक्चर से। जब हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज़ 1/3 मतलब मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एंटायर वर्ल्ड, जेनरिक मेडिसिन का मतलब हम लोग पूरे इंडिया से आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन का, बट हमारे लोगों को, हमारे इंडियन लोगों को ही एफोर्डेबल रेट्स में मेडिसिन नहीं मिलते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण। अभी आपने अगर कोविड के टाइम में देखा होगा रेमडेसिविर जैसी चीज़ वो लोग मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बहुत सस्ते दामों में बेचना चाहती थी, बट ब्लैक मार्केटिंग की वजह से वो एंड कस्टमर तक पहुँच नहीं रहा था। तो हम लोग ने हमारे मुहिम से बहुत रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की कि ब्लैक मार्केटिंग वो चीज़ से बंद हो। तो मैं जेनरिक आधार को अगले 5 साल में यही देखता हूँ कि यहाँ से एक क्रांति हम लोग ने ऑलरेडी ला दी है और हर एक सीनियर सिटीजन्स ने तो पेंशन होल्डर्स को इनकी हम लोग एक नीड सॉल्व करके एफोर्डेबल मेडिसिन देना चाहेंगे। Can we have some other questions, please? बाकी भी है सरपंच जी, ये सोच एक मिनट प्लीज। जी, सर। आप कुछ पूछना चाहते थे, आप बात कर रहे थे ऊपर। आज का जो सर इवेंट है, जो प्रोग्राम जो हुआ है, इससे हम क्या मान के चलें कि किस नतीजे पे हम आगे की मतलब नई योजना पर पहुँचेंगे? या सो ये एक्चुअली द फोकस ऑफ दिस इवेंट विच ये साल की पूरा इनोवेशन पे है। जी, तो इनोवेशन अभी देखेंगे जो ये 2 साल में इंडियन फार्मा कंपनी उभर के आई है जो इनोवेशन कर रही है। तो ये हमारे फार्मा इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी वो भी बताएंगे जो नई नई इनोवेशंस हो रही है। पूरा फोकस ये साल इनोवेशंस पे है। जो सारी कंपनीज है नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दिखा रही है, जो API में हो, हमें मशीनरी में हो, क्या इस पे कुछ चैलेंजेस पे भी बात होगी, क्योंकि कोविड के बाद से ये पहली बार इवेंट हो रहा है, जैसे आपने सुना था, तो क्या चैलेंजेस पे बात होगी? तो चैलेंजेस ऑफ कोर्स फार्मा इंडस्ट्री के लिए मे बी आई थिंक आई लीव इट टू द एक्सपर्ट्स व्हाट आर दे फेसिंग रादर देन मैं गिविंग हाफ नॉलेज। आई थिंक इसमें सर इस चेयर पे आएंगे सर, थोड़ा अच्छा रहेगा फ्रेमिंग के साथ। सॉरी उस चेयर, हाँ थोड़ा और शिफ्ट कर लीजिए सर, थोड़ा सा बस। ये चैलेंजेस तो काफ़ी है। आपने अभी सुना होगा कि इंटरमीडिएट्स के ऊपर बेसिकली भी हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो स्कीम्स आ रही है उसकी वजह से अभी आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तब इंटरमीडिएट्स बेसिक जो है वो इंडिया में बनने शुरू हो जाएगी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 3 फार्मा पार्क वो बनाएंगे, वो भी 1500 एकर्स के। तो ये 3 फार्मा पार्क जो बनेंगे इसमें काफ़ी एडवांटेज मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा, इंसेंटिव्स भी मिलने वाले। आप इंसेंटिव भूल जाइए, लेकिन क्या होता है कि एक सस्टेनेबिलिटी मिल जाएगी कि एक जगह मिलेगी, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छी आ जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को काम करना इजी हो सकता है। और यही वजह से फ्यूचर के लिए जो इंडिया का जो ग्रोथ है फार्मा का वो अच्छा रहेगा। सर आपसे जानना चाहूँगा मैं कि मेडिकल क्षेत्र में अगर दवाइयों की जो बात करते हैं, अर्जुन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये 19 साल के हैं, उनकी इच्छा है आत्मनिर्भर, और वो स्कीम के लिए अपना वो स्प्रेड करना चाहते हैं अपना विंग। और ऐसे अगर युवक आगे आके अगर कुछ सोचते हैं तो मुझे पक्का मालूम है कि वो अपना गोल है वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक इंसान 22 साल पे इनकी उम्र में ही मैं एक इंडस्ट्री में जब आया था तब मैंने 9-10 साल नौकरी की थी। आज मैंने अपनी 600 करोड़ की कंपनी बनाई है और मुझे एक आनंद है बोलने में कि दुनिया चाइना से लेती है, लेकिन हम चाइना में 80 करोड़ का माल बेचते हैं। हमने हमारे APIs में 7 APIs 2-2 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करके रजिस्टर किए हुए हैं और आज नहीं 10 साल से बेच रहे हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल
लेकिन क्या है उसके लिए एक सस्टेनेबिलिटी, एक कंटिन्यूस अपने दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये गोल अचीव करनी चाहिए। मैं जानता हूँ, देखिए मैं 24 साल केमेक्सिल जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसके ऊपर मैं 32 बिलियन एक्सपोर्ट दिखता था। जब मैं ये देख रहा था 24 साल पहले, तब फार्मा भी मेरे पास ही था, फार्मा मेरे से सेपरेट हुआ था। आपको एक कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़रूरत आज इंटरमीडिएट्स की भी इस देश को है। बिना इंटरमीडिएट आप एपीआई नहीं बना सकते, तो इंटरमीडिएट के ऊपर फोकस होना चाहिए, जिससे क्या है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया और इंडिया की सस्टेनेबिलिटी बन सकती है। उसके लिए पॉलिसीज़ है ना, वो एकदम क्लीन आनी चाहिए। पॉलिसीज़ में क्या होना चाहिए कि अगर ये एक पेपर फाइल किया तो 3 दिन के अंदर उसका जवाब नहीं आया तो चौथे दिन डीम अप्रूवल होना चाहिए, उसे पॉलिसी कहते हैं। वैसी गवर्नमेंट ने अगर पॉलिसी लाई तो आप देख लीजिए अगले 2 साल में कितनी उन्नति फार्मा एपीआई और इंटरमीडिएट्स में होगी। मतलब यहाँ से निर्यात किया जाएगा, आयात नहीं किया जाएगा। 100% हो सकता है, निर्भर नहीं रहेंगे हम। नहीं रहेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको यही कहा ना कि पॉलिसीज़ क्लीन होनी चाहिए। पॉलिसीज़ में कैसा है, देखिए हम ऑनलाइन में सब है मानता हूँ, लेकिन कैसे एक कोई भी पेपर जमा किया, उसको एक 7 दिन का मुदत दिया, 7 दिन में अगर कोई जवाब नहीं आता है डीम अप्रूवल हो जाएगा, तो क्या होगा, फास्ट ट्रैक चलेगा। आज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन जो है उनके पास पैसा है, टैलेंट है, हार्ड वर्किंग है। अब अगर देखेंगे तो पूरी वर्ल्ड में 3 कंट्री के लोग घूमते हैं, एक जापान, एक चाइना और एक इंडियन। तो हम सब जगह कर सकते हैं जाके काम, और हमने दिखाया है वर्ल्ड को। आईटीबीटी में आप देखेंगे तो इंडिया नंबर 1 पे है। वैसे फार्मा में भी हम नंबर 1 पोजीशन कर सकते हैं। पॉलिसीज़ के हिसाब से अगर सस्टेनेबिलिटी हो गई तो इंटरमीडिएट के ऊपर अभी फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट्स अगर हम बनाएंगे तो एपीआई हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कॉमन मैन को आप जो कहते हैं सस्ता चाहिए, हम सस्ता ज़रूर दे सकते हैं ना, क्यों नहीं देंगे। मेंटालिटी में अगर हम देखो तो मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मेरे देश को मैं आत्मनिर्भर करूं और सस्ते दाम में बेचूं, और वह हो सकता है। अर्जुन जी, कितने आउटलेट है अगर ग्राहकों को डायरेक्ट अगर उसका लाभ मिले? अभी हम ये लोग चीज़ें पूरे जब से 4 साल से क्रांति आई है, आपको देखकर काफ़ी सारी कंपनियां हैं, उन्होंने भी जर्नी स्टार्ट किया है कि हम कम सस्ते, कम 100% आधे में दवाइयाँ देंगे। तो ये अगर बात करें, कितने आपके सेंटर हैं अभी तक और कितने और खोलने का इरादा है? अभी हम लोग 150+ सिटीज़ में काम तो कर ही रहे हैं, और ऐसे ही हम लोग अभी पूरे इंडिया में मतलब 300+ सिटीज़ में एक्सपैंड करते जा रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च भी किया, जो छोटा रिटेलर है हमारा उनको सपोर्ट हो उससे, और हम लोग एक एग्रीगेट करते छोटे रिटेलर्स को हम लोग एंड कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। सो B2B2C जब हम लोग कहते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री में एक न्यू इनोवेशन हम लोग ने लाया है, फ्रॉम द डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू द एंड कंज्यूमर, क्योंकि आज मैन्युफैक्चर को भी ज़रूरत है कि हम MNC मुक्त होने के लिए और हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को देने के लिए, तो मैन्युफैक्चर टू द एंड कंज्यूमर ऐसा हम लोग संकल्प कर रहे हैं। एक सवाल अगर मैं पूछता हूँ, जर्नी आधारित क्यों ले लो? इसमें क्या खूबी है? जैसे हर किसी को अपना बच्चा अच्छा लगता है, आपसे अगर बात को जर्नी का आधार की जो दवाइयाँ हैं जो आपका है, तो उसके बारे में क्या है, अलग चीज़ें क्या हैं? मैं ये चीज़ के बारे में कहूँगा कि आज ये इवेंट है तो CPHI के बारे में मतलब मैं ये इसके लिए यहाँ पर आया हूँ कि CPHI को बहुत बहुत मेरे तरफ से मैं कॉन्ग्रेचुलेट देना चाहूँगा। जेनरिक आधार के बारे में डेफिनेटली मैं आपसे अलग बात करता हूँ ये चीज़ को लेके, और एक CPHI को मतलब मैं एंड में ये कहना चाहूँगा बहुत बहुत अच्छा एक टीम वर्क है, और एक फार्मा इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए हम लोग का जेनरिक आधार ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा फार्मा इंडस्ट्री ग्रो हो, क्योंकि जेनरिक आधार तो उसके लिए हम लोग ने एक नींव रची है सब लोगों को एफोर्डेबल मेडिसिन, बट जो नींव रचने के लिए जो पहले से है जो फार्मा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स है, तो उनको हम लोग को सपोर्ट जितना मैं कर सकता हूँ मेरे तरफ से उतना मैं करूँगा, और पूरी हम मतलब पूरी टीम करेगी सब लोगों की। सर, नई रणनीति क्या है? In pharma markets in India, especially the CPHI PMAC 2021 edition. We never imagined such a big response. 30,000. इशू आई थिंक टैक्सेशन इज यूनिवर्सल। जो टैक्स रेट्स अगर जो इंपोर्ट्स पे अगर कुछ सब्सिडीज आ जाए डेफिनेटली देन दैट विल हेल्प अस क्रिएटिंग मच मोर एपीआई। दैन अपना फोकस अभी एपीआई इंपोर्ट्स पे है, इंपोर्ट्स कम करना है, तो डेफिनेटली टैक्सेशन अगर रिड्यूस हो जाए दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। चक्रवर्ती जी, यू वांट टू से एनीथिंग? I wish to tell on the A's how the CEOs can rise to the occasion. Yes, I wish to tell them. या जैसे आप पूछ रहे हैं, जी। you have been asking. आपका परिचय सर पूरा? I'm Chakravarti, ABPS. I'm a global ambassador of the World Packaging Organization.
which has 62 countries as members. We are very heartfully thankful to the CPHI management for being partners of that. And you just now asked, I myself being a CEO in one of the pharmaceutical industry, I belong to this industry. You told just now, Mr. Deshpande, 29 years old, at the age he's still dreaming, he's already contributing. Why not? So this is what the Indian pharmaceutical industry is rising to the occasion. If you see my friends, be it Mr. Satish Reddy, be it Mr. Glenn Salthana of Glenmark, or Mr. Satish Reddy, the chairman of the Dr. Reddy's laboratories, they're all very young, less than 50 years old. Yeah. And the future belongs to the young CEOs. If you see Mr. Sharvil Bhai Patel, who is the son of Dr. Pankaj Bhai Patel of Zydus Group, and if you see Samina Hamid from Cipla, Yogesh Agarwal from Ajanta Pharma, Arjun Juneja from the Juneja's family, from Mankind, Mr. Sharad from Aurobindo, and Dr. Kiran from Divi's Laboratories, the largest API manufacturer. These are all younger people, around 40 years, 35 years old. And these people have lot of aspirations. They have seen the world, but they have grew up under their father's guidance. Even if you take Mr. Satish Vaghs, both the girls, both the daughters are working, and their aspirations are much more. They are correlating what is happening over worldwide. They have been observing what is the need. And just now, the last week, Dilip Bhai, Mr. Sanghvi ji of Sun Pharma, Satish Reddy, Glenn Saldan, Mr. Gupta of Lupin, they all told what they told. Innovation is the key. Already, there is 13 to 15% of the contribution is coming from innovative products, not just from generic products. The future belongs to innovation, and India Pharma is vibrating with a lot of innovations. A platform like CPHI PayMac platform is connecting the dots, bringing together all the technologies at one place, a great knowledge exchange form, the CEO roundtable where the top CEOs in Indian Pharma are participating. They are going to discuss and deliberate and share the knowledge. As Mr. Mudras told, a white paper is going to be released after that to set the tone, to set the way forward. So the pharmaceuticals is buzzing with a young blood. And these are the people who are going to set the tone for the future of India to become the number one pharmaceutical industry in the world. सर आपसे जानना चाहेंगे क्या आगे प्लान क्या है इनके साथ मिलकर, जैसे कि अभी बात हुआ कि काफ़ी कम उम्र के हैं जो इस क्षेत्र में आए हैं, तो क्या प्लान है आगे आपका, कुछ दिमाग में होगा कि? डेफिनेटली आई थिंक आप जैसे बताया IBPSC ने कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर, अर्जुन ने तो कमाल कर दिया है एट दिस स्टेज आई थिंक. सो डेफिनेटली विल आज ही हमारी मुलाकात हुई है, अभी बैठ पर डे 2 से 3 आउटलेट का ओपनिंग करते हैं पर डे. तो आज देखेंगे हमारा एज इन्फॉर्म मार्केट हम लोग 16 अलग अलग इंडस्ट्रीज में शोज करें, लेकिन ये फार्मा हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल है और अर्जुन जी का भी वही सबसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. तो डेफिनेटली हम लोग कुछ ज़रूर करेंगे साथ में. जो मैं यहाँ पर कहूँगा डेफिनेटली CPHI को, मतलब आप अभी फार्मा में स्टार्टअप्स इज ऑल्सो कमिंग, सो CPHI फॉर स्टार्टअप्स. This will be really a great platform. A great encouraging platform for all इसमें the मैं आपको startups. कहना चाहता हूँ भाई साहब जी, देखिए पहले जो था, एक आप 10-15 साल पहले देखो, जो मैंने देखा है मेरी एक एज में, हम हमारे बच्चे लोगों को US और UK भेजते थे पढ़ाई करने को. वो जो जाते थे ना वापस नहीं आते थे, वो कहते थे बाय बाय हम उधर ही सेटल होते. लेकिन आप अभी ये देखना चाहिए कि लास्ट 5-7 साल में जो एक यंग ब्लड जो खड़ा हुआ है, वो ये कहता है कि मैं मेरी जो ओरिजिनल इंडस्ट्री है, मेरे पेरेंट्स ने जो खड़ी की है, उसको मैं चलाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ. और ये जो चेंज है ना, ये एक मैसिव चेंज है. आप देखते हैं अब आपका एक सवाल हमेशा क्या आता है कि जेनरिक सस्ता. देखिए मेरे हिसाब से जेनरिक और सस्ता मेडिसिन होना ज़रूर चाहिए, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्री के ऊपर जो नॉर्म्स डाले, आपको मालूम है हमारे जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स हम US के हिसाब से यहाँ लगाते हैं, क्योंकि हम प्लांट में US FDA के प्रोडक्ट में बनाते हैं. तो ये सब जब नियम और कानून लागू होते हैं ना, इसकी फ़ीस लगती है. आप एक ध्यान रखिए, हमें अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर माल बेचना है, वो 1 किलो भी हो,
तो साल में 80 लाख रुपया फ़ी भरनी पड़ती है। यूरोप में अगर किसी भी प्रोडक्ट को हमें बेचना है तो ड्रग मास्टर फाइल की फ़ीस है 1 करोड़ रुपया। जैसे मैंने कहा चाइना में मैं अगर एक भी प्रोडक्ट बेचूँ तो ड्रग मास्टर फाइल 1 CR ट्रांसलेशन फ़ी। अब ये जो खर्चे हैं वो फाइनली मैन्युफैक्चरिंग पे आएंगे, तो दवाई इसलिए महंगी हो जाती है। दवाई महंगी हो जाती है ना। लेकिन इसमें आप एक देखिए, दवाई हमेशा 365 डेज मिलनी चाहिए, शॉर्ट सप्लाई होके भाव बढ़ना नहीं चाहिए। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हमारा यहाँ दवाई जो है वो हर एक आदमी के पास पहुँचे, और वहाँ सब्सिडाइज कैसे करना है वो गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि कैसे सब्सिडाइज करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे तरफ से तो हम सप्लाई दे सकते हैं कॉन्स्टेंट, प्राइस में भी हम कंसिडरेशन कर सकते हैं, लेकिन एकदम आप बोलोगे कि सस्ता सस्ता, तो ये सस्ता पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एक ओवरहेड्स लग चुकी है, एक स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लग चुका है। अब इस स्टैंडर्ड के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो तुरंत अपने स्टैंडर्ड लोअर डाउन नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो फिर प्लांट वो रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ से US FDA और यूरोप से। सर एक क्वेश्चन मेरा है, मैं संदीप वर्मा हूँ, मत गलत है। एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि कोविड के दौर में जैसे स्टार्टिंग में चीज़ें आई, उस दौरान बहुत सारी दवाएं जो है वो मतलब ये पता नहीं चल पा रहा था ये काम करेंगी भी कि नहीं करेंगी। आखिरी में ये चीज़ें आई कि वो काम नहीं की। तो इस पर क्या नए इनोवेशन या इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में कोविड के विषय इसके ऊपर तो अभी इनोवेशन चल रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी डिसीज़ आता है तो उसको क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह तो करनी पड़ती है, समय बहुत कम था, तो ट्रायल एंड एरर, क्योंकि हर एक आदमी की जान बचानी चाहिए, यही एटीट्यूड हर एक का रहता है, तो इसी वजह से ये ट्रायल एंड एरर होते गए। लेकिन अभी आपने देखा नहीं, लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ कि अभी ये फ्यूचर है ना, ये ऐसा ही है। इस फ्यूचर में ये ऐसे ही वायरस आने वाले हैं। इस वायरस के ऊपर काफ़ी इंडस्ट्रीज सर ये तो अंडरस्टूड है, हम लोग बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन हम फार्मा इंडस्ट्री क्या कर रही है बस उस पर बताएं। फार्मा इंडस्ट्री तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वो नए प्लांट खड़ा कर रही है। आपका क्वेश्चन क्या था, जेनरिक मेडिसिन क्या बोले? नहीं जेनरिक से कोई नहीं, नॉर्मल इनोवेशन का कोविड के दौर में जो बहुत सारी दवाएं थी वो मतलब प्रयास किया गया, वो बहुत सारी नहीं चली, फिर उसके बाद में कुछ चीज़ें आई, तो क्या फार्मा इंडस्ट्री कुछ कोविड में क्या नया कर रहा है, इनोवेशन है क्या? साहब इसके ऊपर मैंने कहा आपको कि इनोवेशन चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों ने फॉरेन कोलैबोरेशंस करके उसके लिए वो वैक्सीन्स वगैरह बनाने के लिए अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। आपको मालूम है कि हमको भी 130 करोड़ जनता को जो हमने डोज दिया, वो डोज तो मैन्युफैक्चर नहीं दिया, इंडिया में ही बनाया गया ना, तो दैट मीन्स इंडिया के पास कैपेसिटी है, इंडिया के पास टैलेंट है। हमने कभी ये सोचा नहीं था ना ऐसा कोई वायरस आ जाएगा जिससे हमारा 19 महीना एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हम हर महीने में तो हमारी बैग और हमारी ट्रैवल लेके घूमते थे, लेकिन 19 महीना जो गया वो इतना ख़राब गया कि सोच नहीं पाया कि ऐसा भी वक्त अपनी लाइफ में आ सकता है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए इंडस्ट्री तैयार हो रही है। सर आखिरी सवाल है अपना, अगर बात करें मेडिकल की तरफ से, अगर आप सब दवाइयों के बनाने विक्रेता हैं, बनाने वाले हैं सब, तो कोरोना खत्म हो चुका है, क्या है पोजीशन क्या है कोरोना का? अभी बहुत सारी जगह देखिए कोरोना का तो माहौल एंड में तो आया है। आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारी अपनी इंडिया में जितने आदमी का इफ़ेक्ट हुआ बहुत कम है वैसे अगर देखो तो रेशियो, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम जो खाना वगैरह जो खाते हैं इसमें ऐसा सब मिक्सचर आता है जिससे हमारी एक जो पावर जो बॉडी की है वो एकदम सस्टेनेबल है मसाले की वजह से, तो इसलिए हमें उसका इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर के लिए हम तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सर, बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आयुर्वेदी इलाज